Children, in the previous video I explained you displaced time graph. In this video I am going to explain you velocity time graph, and it could be speed time graph also. The only difference is speed is never negative, so the graph may come only in first quadrant if we take speed time graph. But when we take velocity, which may be positive or negative, so the graph may come in first or in fourth quadrant. Both possibilities are there. Time is always taken along x-axis. Here we are considering the first case. When body is at rest, that is its velocity is 0, v is 0. So here at origin the value of v is 0, and we will draw a line on the x-axis, on the time axis. That line will represent the 0 velocity. On VT graph, velocity time graph, if the body is at rest, we draw the line on time axis itself. The second type is when body has uniform motion, that is velocity is constant and hence acceleration is 0. The velocity may be positive or may be negative. So if it is a positive velocity, so we draw it on first quadrant, and if the velocity is negative, then the graph is drawn in fourth quadrant, and in both the cases the graphs are parallel to time axis. Velocity is not changing with respect to time. Time is changing, time is increasing, but the velocity remains constant. Acceleration is 0. Third case, for uniform acceleration, and uniform acceleration means positive acceleration or maybe negative acceleration, that is retardation. If the positive acceleration is there, the velocity increases. In graph number 1, it is showing that the body has already positive value at the initial, when the observation begins, it has already some positive value, and with the passage of time the velocity is increasing. In second graph, the initial velocity is 0 and it is increasing with time. In third graph, the initial velocity is negative. After some time it becomes 0 and then it keeps on increasing. So all the three graphs are showing that the velocity is increasing with respect to time, and hence the body has positive acceleration. Acceleration is constant, velocity is increasing. Now take the second case, when the body has negative acceleration. Initial velocity is positive, and because of negative acceleration the positive velocity decreases. After some time it becomes 0 and then the velocity becomes negative. In the second graph, initial velocity is 0 and its negative value increases with time. In third graph, already it is having some negative velocity, and with the passage of time that negative velocity is increasing. Uses of VT graph, इसके दो यूज हैं. एक, इसके स्लोप के हेल्प से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा जो एरिया कवर करता है ग्राफ, उसके हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट में देखिए, स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स acceleration, and to get the slope we mark 2 point P1 P2, उनके corresponding velocities V1 और ये V2 मार्क किया. P1 का corresponding time T1, P2 का corresponding time T2 लिया है, और slope equals to होता है y coordinates का difference upon x coordinate का difference. So here y coordinates are v2 and v1, x coordinates are t2 and t1, and hence acceleration A equals to v2 minus v1 upon t2 minus t1. The second use is the area covered under VT graph shows displacement. ग्राफ के और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया आता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को. जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में ग्राफ लिया, हो सकता है कि ये रेक्टेंगल होता है या सिंपल ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता, तो वहाँ से हम टाइम एक्सिस में एरिया कवर करके निकालते और वो रिप्रेजेंट करता डिस्प्लेसमेंट को. तो इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, और
इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमेरिकली वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और अच्छे से समझने के लिए एक ये ग्राफ का स्टडी करिए, क्वेश्चन आपको बाद में इसके समझाते हैं। इस ग्राफ में देखिए ओ ओरिजिन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ यहाँ पे ग्राफ के एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये ग्राफ ऊपर की तरफ गया है, 10 सेकेंड तक ऊपर की तरफ गया है। फिर ए से बी मतलब 10 सेकेंड से 30 सेकेंड तक ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड है। फिर बी के बाद में यानी आफ्टर 30 सेकेंड उसमें रिटार्डेशन हो रहा है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते फाइनली फिर ज़ीरो हो गई। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो आ रही है, पूरा डिफरेंट टाइप के मोशन परफॉर्म करने के बाद। 3 पार्ट हैं इसके। ओ ए पार्ट में पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, ए बी पार्ट में जीरो एक्सेलेरेशन है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, और इस बी सी पार्ट में नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, रिटार्डेशन है। अब इस पे जो पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं उसके 2-4 एग्जांपल आप देखें। फर्स्ट इज व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट इज 0। सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड आप देखिए ई और डी के बीच में आ रहा है यहाँ, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है। तो दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच कभी भी पूछेंगे तो उस वेलोसिटी का वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड आएगा। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 25 सेकेंड। तो ये 25 सेकेंड 10 और 30 के बीच में आ रहा है और ए बी पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी कि एक्सेलरेशन 0 है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। ए से बी में कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी टाइम इंटरवल 10 से 30 सेकेंड के बीच कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने के लिए हम एरिया ए बी डी ई को कैलकुलेट करेंगे जो एक रेक्टेंगल के शेप में है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ए बी इज द लेंथ, ए ई इज द ब्रेड्थ एंड ए बी लेंथ का वैल्यू होगा 30 माइनस 10, बी के लिए 30, ए के लिए 10। सो 30 माइनस 10 ए बी के लिए लिखा। इसी तरह ए के लिए करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट 60 है, ई के लिए करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो इस ए की जगह लिखा 60 माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1200 मीटर आ रहा है, यानी जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या ये बोलें जब टाइम इंटरवल 10 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में इसने 1200 मीटर के बराबर डिस्प्लेसमेंट किया। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट रिटार्डेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, फाइंड द रिटार्डेशन एंड पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। तो रिटार्डेशन ये बीसी पार्ट के लिए और पॉजिटिव एक्सेलेरेशन ओए पार्ट के लिए। सो रिटार्डेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बीसी पार्ट ऑफ ग्राफ। इस बीसी पार्ट का स्लोप निकालेंगे। तो सेकेंड पॉइंट सी, फर्स्ट पॉइंट बी। तो सी का y कोऑर्डिनेट 0, b का y कोऑर्डिनेट 60। तो यहाँ न्यूमेटर में लिखा 0 माइनस 60। फिर c का x कोऑर्डिनेट 45 और b का x कोऑर्डिनेट 30। तो डिनोमिनेटर लिखा 40 माइनस 30। इसको सिंप्लीफाई किया तो यार -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन को। जब ये ग्राफ नीचे की तरफ आता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ओ ए पार्ट कंसीडर किया, फिर स्लोप निकाला। ओ इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ए सेकेंड पॉइंट है। तो सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 60, फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0। तो न्यूमेटर में लिखा 60 माइनस 0। सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 10, फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0। तो डिनोमिनेटर में लिखा 10 माइनस 0। सॉल्व किया है +6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।